یعنی پاک اللہ کو پیارے ہیں. ایک تو ہو گیا نماز کے لیے وضو کرنا ہے نا. نماز کے لیے وضو کرنا کہ ہم صرف نماز پڑھ لیں گے اس وجہ سے وضو کر رہے ہیں تو وہ الگ ثواب ہے. اور ایک ہو گیا کہ باوضو رہنا ہے, نماز کے بعد بھی کوشش یہی کرنی ہے کہ باوضو رہنا ہے, اور جو ہی وضو ہمارا ختم ہوا, فاسد ہوا, ٹوٹ گیا, فوراً ہم جا کے وضو کرتے ہیں. اچھا ایک چیز اور ہے, ایک صاحب تھے, حاجی صاحب نے تقریباً ایسی بات ہو رہی وضو میں, تو انہوں نے بتایا حضرت وضو پر وضو کر لیتا ہوں تو اس میں کوئی نقصان ہے؟ میں نے کہا اگر اس چیز کا شک ہے یار پتہ نہیں وضو ہوگا یا نہیں ہوگا, پتہ نہیں وضو ہوگا یا نہیں ہوگا, اس شک کی بنا پر وضو کیا تب نہیں کرنا ہے, تب وضو نہیں کرنا ہے. پتہ نہیں ہوگا, یہ شیطانی وسوسہ ہے, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, تب وضو نہیں کرنا ہے. اور یہ سوچ کر کے کرنا کہ وضو اگرچہ ہے, وضو پر وضو کر لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنا ثواب عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, تو ڈبل فائدہ ہو گیا. دوسرے ابھی میں نے ایک آیت, ایک حدیث پاک بڑی مشکاہ شریف کی حدیث ہے, الصلاۃ مفتاح الجنۃ والطہارۃ مفتاح الصلاۃ, یعنی جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے. سبحان اللہ. جنت کی کنجی نماز ہے, کنجی سمجھتے ہیں نا, چابی, کشمیری لوگ سمجھے. تو جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے, طہارت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے پہلے ہاتھ دھوتا ہے. وضو میں 3 چیزیں. پہلی سنت ہے ہاتھ دھونا کٹوں تک, منہ میں پانی ڈالنا, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, یہ تینوں چیزیں سنت ہے نا. چہرہ دھونا فرض ہے, کوریوں سمیت ہاتھ دھونا فرض ہے, مسح کرنا فرض ہے, ٹخنوں سمیت پیر دھونا فرض ہے, مگر یہ تینوں سنت ہے. اور اس سنت کی حکمت کیا ہے؟ بڑی پیاری بات یاد آ گئی کہ پہلے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب بندہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے اندر جتنے گناہ ہوتے ہیں, گالی دی, جھوٹ بولا, کسی کی غیبت کی, گناہ کبیرہ کے علاوہ گناہ کبیرہ جو بڑا گناہ ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے. جس کو گالی دے دی ہے تو معاف ہو جائے گی, جس کو گالی دی ہے نا اس سے معافی مانگنی پڑے گی. یہ مت سمجھنا کہ میں اللہ تعالیٰ توبہ کر لوں گا معاف ہو جائے گی. اور گالی کے لیے حضرت علی کا فرمان ہے جیسی گالی دو گے ویسا ہی ایک جو تمہارے نام کا تمہاری قبر کے لیے تیار کر دیا جائے گا. جیسی گالی دو گے. اور سب سے چھوٹا بچھو کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے چھوٹا جو بچھو ہے وہ ایک خچر کے برابر ہے. سب سے چھوٹا بچھو. اب اگر کسی کو گالی دو گے تو خیال رکھنا تمہارے لیے تیار ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو عام چیز ہے نا, عام بات ہو گئی, مگر گالی گلوچ سے دور رہنا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ کلی کے ذریعے دھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ پانی کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے پانی کے ذریعے چہرے کا گناہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ پلکوں کے اندر بھی جو گناہ ہوگا نا وہ بھی ختم ہو جائے گا. جب ہاتھ دھوتا ہے, جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ پانی کے ذریعے ہاتھ کے گناہ ختم. جب مسح کیا تو سر کا گناہ ختم. جب پیر دھویا تو ٹکنے کا گناہ ختم. یہ حدیث پاک. اب آئیے ذرا سائنس کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی. وضو کرنے کے لیے پانی کیسا ہونا چاہیے ہے نا, یہ بھی تو ضروری ہے نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹنکی میں پانی رکھا ہے, کسی نے لا کے نمک ملا دیا ہو, کسی
किसी ने चीनी मिला दिया हो शरबत बनाने के लिए, किसी से दूध गिर गया हो या किसी से कोई और चीज गिर गई हो, ये भी तो ख्याल रखना है। तो इसलिए पानी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए वुज़ू करने के लिए? तो पानी की जो क्वालिटी है उसमें 3 चीजें ऐसी हैं जिसका देखना जरूरी है। पानी का रंग, पानी का रंग, पानी की खुशबू, पानी का मजा, जायका। पानी का रंग देखने के लिए अल्लाह ने आंखें अता कर दी है। इसी वजह से जब पानी पिया जाता है तो मेरे आका की सुन्नत है, जब पानी पियो तो पहले देख लो, कितना भी साफ क्यों ना हो, पहले देख लो, है ना। और दूसरे, पानी का मजा ना बदला हो, पानी पानी की तरह हो, नमकीन ना बन गया हो, मीठा ना बन गया हो, कोई मशरूब ना बन गया हो। तीसरे, उसकी खुशबू पानी ही जैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने नींबू मिला के निचोड़ करके उसको शरबत बना दिया हो, है ना। तो पानी का रंग देखने के लिए जब हाथ में पानी आया, हाथ धोने के लिए, देखो सुन्नत का कितना बड़ा फायदा है। हाथ धोने के लिए, जब हाथ धोने के लिए हाथ में पानी लिया तो हाथ में पानी लेने के बाद दिखाई दे क्या पानी साफ है, पानी साफ है। कुल्ली किया तो ज़बान ने बता दिया पानी का जायका पानी की तरह है। नाक में पानी डाला तो नाक ने ये बता दिया कि इसकी खुशबू बदली नहीं है। ये सुन्नत है ना। मेरे आका की सुन्नत के कितने बड़े फायदे। और जहां तक साइंस की बात है, जहां तक साइंस की बात है, आप तमामी हजरात ने 2 साल पहले, 2.5 साल पहले तो सुन ही लिया होगा कि बड़ा चर्चा था कि दिन भर में कम से कम 5 बार हाथ धोया करो, दिन में कम से कम 5 बार हाथ धोया करो। ये आज साइंस आज क्या बताएगी? मेरे आका ने 1450 साल पहले बता दिया कि अगर दिन में 5 बार हाथ धोएगा तेरे पास कोई बीमारी नहीं आएगी, है कि नहीं? तो इसलिए जो है मेरे आका की जो सुन्नतें हैं, अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो बहुत सी ऐसी बीमारी है जिन बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। मगर सुन्नत मोहब्बत में अलग है ना। तो पहले हाल मैं अर्ज कर रहा था वज़ू। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, सुभान अल्लाह, जिसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, अभी मैंने बताया ना, चेहरा धो के चेहरे का गुनाह खत्म, हाथ धो के हाथ का गुनाह खत्म, सर का मसा करोगे सर के गुनाह खत्म, पैर धोगे पैर का गुनाह खत्म। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया उसके बदन के सारे गुनाह खत्म कर दिए। अल्लाह ताला कितना बड़ा कारसाज है, कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा रहीम है, कितना रहम फरमाता है। अच्छा, यही बात यहीं तक खत्म नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ लिया, सुभान अल्लाह, जिसने बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ लिया, वज़ू करने का फायदा देखो, जिसने बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ लिया और जब वज़ू किया तो वज़ू करने में जितने कतरात निकले पानी के, जो आज़ाद होने से कतरात टपकते हैं, जितने कतरात निकले पानी के, हर कतरे में एक फरिश्ता पैदा कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। जब वज़ू करने का आलम ये है, नमाज का आलम क्या होगा? और जब नमाज पढ़ेंगे तो रातों में जागने का आलम क्या होगा, है ना। कहते हैं कि जब वज़ू बंदा वज़ू करता है और बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ लेता है, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ लेता है, तो जब बंदा वज़ू करने में जो पानी के कतरात निकलते हैं, हर कतरे के बदले में एक फरिश्ता पैदा किया जाता है। और वो फरिश्ता जब तक वज़ू रहता है बंदे का, सुभान अल्लाह, जब तक वज़ू रहता है उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करता है। ये सिर्फ वज़ू करने का फायदा है। हम गफलत में कहां सो गए हैं।
जब बंदा वजू करने में इतना फायदा कमा लेता है, हम गफलत में कहां सोए। और मैंने पिछले जुमे को बताया था ना नमाज के ताल्लुक से कि जब बंदा नियत करके अल्लाहु अकबर कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता, सना पढ़ता है, तो तस्मीया पढ़ता, सूरह फातिहा पढ़ता, हर अरकान पर अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकियों से नवाजता है। तो बहरहाल दूसरी हदीस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और ऐसी हदीस बात कि ये बताना और अवाम में जाना बहुत जरूरी है कि अक्सर लोग वजू करते हैं तो वजू के दौरान अपने अपने मोबाइल को बंद कर लिया मस्जिद में, वजू के दौरान थोड़ी सी लापरवाही बरत जाते हैं और लापरवाही बरतने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि वजू में चेहरा धोना फर्ज है ना, कोहनियों समेत हाथ धोना फर्ज है, टखनों समेत पैर धोना फर्ज है, चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। अगर बाल के बराबर की कोई जगह रह गई तो वजू नहीं होगा, और जब वजू नहीं होगा तो नमाज कहां से है ना। और जिसका वजू नहीं होता है उसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज फजर की नमाज में सूरह रूम की तिलावत फरमा रहे, अचानक मुतशाबिह लगा। मुतशाबिह समझते हैं? अचानक गलती हुई ऐसी कि जिससे नमाज में सजदा सहू करना वाजिब हो गया, जिससे नमाज में सजदा सहू करना वाजिब हो गया। अब अगर यही मसला ना कोई मौलवी सुनाए तो अक्सर अवाम में ये मशहूर हो जाता है, देखो अपने बचने के हर पे मौलवी ने अपना लिया है ना। अगर ये हदीस पाक है, हक बयानी है। सलाम फेरने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे जानिसार सहाबा, कैसे हैं वो लोग जो इत्मीनान और सुकून के साथ वजू नहीं करते? कैसे हैं वो लोग, क्या हाल है उनका, किनका? जो कामिल वजू नहीं करते हैं, उन्हीं की वजह से इमाम को मुतशाबिह लगता है। अब अक्सर लोगों को ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो तो ये कहते हैं हदीस पाक है और हदीस पाक मेरे आका का फरमान है, मेरा ईमान है, आता है। मगर अक्सर जो गांव में या पुराने दौर में जो मजबूर हो चुका है, ताज्जुब से अक्सर लोग कहते हैं देखो मौलवी ने अपने बचने का जरिया निकाल लिया, हालांकि बुलाई को था तो हमारी क्या है ना। अक्सर लोग कहते हैं ना, मगर हकीकत ये है गलती बच्चे की होती है तो कितना बाप को पड़ता है ना। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कामिल वजू करो, अच्छी तरह वजू करके। जब नमाज पढ़ोगे, जब तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हारी नमाज भी कामिल हो जाएगी। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा का फरमान है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरोज़े क़यामत मेरी उम्मत इस हाल में बुलाई जाएगी कि उसके मुंह और हाथ पांव आसारे वजू से चमकते होंगे। बरोज़े क़यामत मेरी उम्मत के लोग जिनका चेहरा, जिनका हाथ, जिनका सर और जिनका पैर आसारे वजू की वजह से चमकता होगा, उसको लोग दूर से पहचान लेंगे। ये वजू करने का जो बराबर वजू हमेशा रहते हैं, वजू टूटा फौरन जाके वजू कर लिया, ये बराबर वजू करने वालों के लिए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक और याद आई कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा बेवजू जिसकी मौत होती है, वो तो अपनी मौत मर गया, उसका हिसाब किताब वो अपने अमाल के एतबार से देगा जिस अंदाज में होगा। मगर बंदा जब वजू की हालत में मरता है, बंदा जब वजू की हालत में मरता है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब बंदा वजू की हालत में मरता है तो बरोज़े क़यामत शहीदों के साथ उठाया जाएगा। क्या सबूत मिला? हमें वजू के साथ रहना चाहिए। अच्छा एक चीज और है, अगर हम वजू के साथ रहे, हमेशा बावजू रहे, वजू हमारा खत्म हुआ, फांसी हुआ, टूट गया, फौरन जाके वजू कर लिया, अगर हम बावजू रहे तो इंशाअल्लाह ताला गुनाह भी कम हो जाएंगे, है ना। वजू से रहेंगे,
गालियां नहीं देंगे, वजू से रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला झूठ से दूर हो जाएंगे, वजू से रहेंगे। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिससे दूर हो जाएंगे। और आज के दौर में जो हमारे नौजवान के बीच में नशे का कारोबार चल रहा है, ये नशे का जो कारोबार है, ये नशे का कारोबार अगर हम बराबर वजू से रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नशे से मुक्ति मिल जाएगी, है ना? मिलेगी इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे तभी तो। क्योंकि जब बंदा वजू से होगा ना और उसको याद रहेगा कि मैं वजू से हूँ, तो खाली बैठा कुछ करेगा नहीं, गाना नहीं गाएगा, खाली बैठा कम से कम दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देगा। खाली बैठा वजू से रहेगा ना, सोचेगा यार उसको सवाब तो मिल जाए, लाओ कम से कम कलमा ही पढ़ लेते हैं, कलमा का विद करना शुरू कर देगा, है कि नहीं? तो जब कलमे का विद करना शुरू कर देगा, दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देगा, तो कम से कम जब तक वो दरूद पाक पढ़ेगा, उस दरूद पाक पढ़ने के दौरान कोई और गुनाह तो नहीं कर सकता। इसलिए वजू के बहुत सारे फायदे। अच्छा, इसके अलावा वजू के ऐसे ऐसे फायदे, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों को ऐसी चीज ना बता दूं जिसके सबब अल्लाह ताला तुम्हारी खताएं माफ फरमा दे, तुम्हारे दर्जात बुलंद कर दे। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्यों नहीं? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त वजू नागवार हो उस वक्त कामिल वजू करना, मस्जिदों की तरफ कसरत करना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, उसका सवाब ऐसा है कि जैसे सरहद पर इस्लाम की हिमायत में पल्लादे इस्लाम के लिए घोड़ा बांधा जाए। मतलब ये एक मुजाहिद का सवाब मिलता है। इसका मतलब ये है कि एक मुजाहिद का सवाब मिलता है। एक मर्तबा का वाकया है, हजरत इमाम आजम तशरीफ फरमा थे। आपका कोई मुरीद था तो वो वजू कर रहा था, और ऐसा मुरीद था कि गुनहगार जरूर था मगर गद्दार नहीं था। गुनहगार जरूर था मगर गद्दार नहीं था। मेरे हाल वजू कर रहा था तो हज़रत इमाम आजम अबू हनीफा, जो हमारे और आपके इमाम हैं, 4 इमाम है ना, चारों इमाम हक पर हैं, मगर हमारे इमाम कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा, है ना? हम हनफी इसीलिए कहते हैं ना। कितने इमाम हैं? 4 इमाम। तो हज़रत इमाम आजम अबू हनीफा बैठे हुए, एक बंदा वजू कर रहा है, तो क्या देखते हैं कि उसके बदन से गुनाह निकल रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या देखते हैं कि उसके बदन से गुनाह निकल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हज़रत इमाम आजम हमारे इमाम है ना? उन्हीं की इब्तिदा में हम सब हैं, हमारे इमाम हैं। और जो तीनों इमाम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, इन तीनों इमाम से बड़े इमाम हैं, और इन तीनों इमाम से पहले का वक्त पाया है। और इन तीनों इमाम से बड़ा दर्जा इसलिए है कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ताबई भी है, नबी के सहाबा को देखा भी है। नबी के सहाबा को देखा भी है। अच्छा, ये आलम है, नबी के सहाबा को देखने वाला जो इमाम है, वो किसी का गुनाह निकल रहा है तो वो गुनाह देख रहा है कि इसका कौन सा गुनाह निकल रहा है। सुभान अल्लाह। तो उस बंदे को बुलाया और उस बंदे को कहा, तूने बदकारी की ना? समझ के, जान के कहने लगे, तूने बदकारी की। वो एकदम से ताज्जुब में कि जब मैंने गुनाह किया, जिसके साथ गुनाह किया उसके और मेरे अलावा कोई था ही नहीं, इनको कैसे मालूम हो गया? कहने लगे, हुजूर आपको कैसे मालूम हो गया? कहने लगे, तुमने किया है ना? किया है। आपको मालूम कैसे हुआ? तो हज़रत इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, जब तू वजू कर रहा था ना तो वो गुनाह निकल रहा था। सुभान अल्लाह। जब तू वजू कर रहा था तो वो गुनाह निकल रहा था, उस गुनाह को मैंने देखा, इसलिए तुझे बुलाया है। अच्छा, जब इमाम आजम सहाबी नहीं है ना, इमाम आजम सहाबी नहीं है, और सहाबी का कितना बड़ा मर्तबा, सहाबी का इतना बड़ा मर्तबा है कि एक सहाबी का जो मर्तबा है, पूरी जिंदगी इबादतों पे इबादतें कर लो, दिन में रोजा रख करके जिहाद करो, मगर उसके बावजूद भी रात में कयाम करो, इतनी इबादतें करने के बावजूद भी सहाबी का मर्तबा नहीं मिल सकता। सहाबी का मर्तबा नहीं मिल सकता। और हमारी औलाद की क्या मैं बात करूं, हम तो इतने गुनहगार हैं। अल्लाह ताला इस मस्जिद में अल्लाह का जो नेक बंदा बैठा है, उसी बंदे के सदके मेरे गुनाहों को माफ फरमाए।
बहरहाल हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। बहरहाल हम लोगों की क्या बात है, हुजूर गौसे आजम, हुजूर गौसे आजम, हुजूर गौसे आजम जिन्होंने 40 साल तक एक वजू से, इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। सोने के बाद वजू टूट जाता है, ये शरअ का हुक्म है, सोने के बाद वजू टूट जाता है, तो इसका मतलब हुजूर गौसे आजम सोए ही नहीं, है ना, अल्लाह की इबादतों में लगे रहे। तो जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करे, रात भर अल्लाह की इबादत करता रहे, ऐसा बंदा भी सहाबी को नहीं पहुंच सकता, ऐसा बंदा भी सहाबी को नहीं पहुंच सकता। और सहाबी है क्या? एक सहाबी रसूल, एक मिसाल ले लो, एक सहाबी रसूल पहले की हालत में थे, सुबह के 10 बजे, एक मिसाल में दे रहा हूं, सुबह के 10 बजे बारगाह रिसालत में आए, इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ में बैअत किया। अच्छा जी, जब बैअत कर लिया, अभी उन्होंने एक नमाज नहीं पढ़ी, ना फजर पढ़ी, ना ज़ोहर पढ़ी, ना असर पढ़ी, ना मगरिब पढ़ी, कोई नमाज नहीं पढ़ी। 10 बजे ईमान लाए, 10 बजे ईमान लाए, 12 बजे इंतकाल हो गया। 2 घंटा ईमान की हालत में, ना कोई नमाज है, ना ही कोई हज है, ना ही कोई रोजा है, कोई ऐसी इबादत जो फराइज वाली इबादत नहीं है, कोई इबादत नहीं है। मगर उस मर्तबे को हुजूर गौसे आजम भी नहीं पहुंच सकते। मालूम है क्यों? क्योंकि अपने माथे की आंखों से रसूल पाक को देखा और उन पर ईमान लाए और उसी हालत में इंतकाल हुआ, है ना। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि जब हुजूर इमाम आजम अबू हनीफा, हमारे इमाम, गुनाहों को निकलता हुआ देख ले, गुनाह कोई दिखने वाली चीज नहीं है ना, ये तो अल्लाह ताला जिसको निगाहे कशफ अता फरमा दे, है कि नहीं? अल्लाह ताला जिसको निगाहे कशफ अता फरमा दे, जब अल्लाह ताला किसी को निगाहे कशफ अता फरमा देता है तो उसको किसी का गुनाह उतरता हुआ दिखाई देने लग जाता है। तो जब इमाम आजम जैसी जात को, जो सहाबी भी नहीं है, ताबई है, जब अल्लाह तबारक व तआला एक ताबई को, उम्मते मुस्लिमा के इमाम को इतनी जबरदस्त निगाहे कशफ, निगाह की वो ताकत अता फरमा दे कि गुनाह झड़ते हुए दिख जाए, तो नबी के गैब का आलम क्या होगा? नबी के गैब का आलम क्या होगा? इस चीज से ये भी पता लगा कि इमाम आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो निगाहे कशफ अता फरमाया। और एक चीज का पता ये भी लगा कि जब बंदा वुज़ू करता है तो उससे गुनाह भी झड़ जाते हैं, उससे गुनाह भी झड़ जाते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुताहिरीन, पाक लोग, सुथरे लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। तो इसलिए हमें पाक रहना चाहिए, बावजूद रहना चाहिए, है ना। बावजूद रहेंगे, जब भी नमाज का वक्त आएगा तो आलस नहीं आएगा, सुस्ती नहीं आएगी कभी। यही सोचेंगे यार जब वजू है, वक्त हो गया, लाओ नमाज पढ़ लेते। जरूरी नहीं है कि जामा मस्जिद में पहुंचे, जरूरी नहीं है कि मोहल्ला मस्जिद में पहुंचे, कहीं ऑफिस में है, वजू है, अल्हम्दुलिल्लाह, बावजूद रहेंगे, वजू है, वक्त हो गया, टाइम देखा 1:30 बज गया, अज़ान का वक्त हो गया, तो इसका मतलब अब नमाज पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हम मस्जिद में पहुंच नहीं सकते। अगर मस्जिद में पहुंचेंगे जमात वैसे भी छूट जाएगी, इससे बेहतर है लाओ यहीं पे नमाज पढ़ लेते हैं। जमात अगरचे छूट जाए, हमारे फराइज तो नहीं छूटने चाहिए ना, है ना। जमात तो अफजल है, मगर हम नहीं पहुंच सकते तो कम से कम फराइज अदा करें। तो इंशाअल्लाह ताला बावजूद रहेंगे, इंशाअल्लाह, है ना। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो बंदा बावजूद इंतकाल कर जाता है, कल बरोज़े क़यामत उसको शहीदों के साथ उठाया जाएगा। शहीदों कहते ना, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत मिला, है ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे इनायत का ये आलम है। और सर्दी में वुज़ू करने का मामला, हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा सर्दियों में वुज़ू करता है, आजकल तो सर्दी फिर भी नॉर्मल हो गई है ना, अभी
कल मैं एक प्रोग्राम में मोहर में गया था, वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा आती है यहाँ के मुकाबले में, मगर जब वहाँ पे पहुँचे थोड़ी देर के बाद जब मुझे वज़ू करना, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो मुझे ये वाली हदीस पाक फौरन याद आ गई। सुभान अल्लाह, ठंडे पानी वाली हदीस। हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि जब बंदा और दिनों में वज़ू करता है, और दिनों में वज़ू करता है, तो वज़ू करने का जो सवाब मिलता है वो तो है ही है, मगर जब बंदा सर्दी में ठंडे पानी से सर्दी को बर्दाश्त करके अल्लाह की रजा के लिए वज़ू करता है, तो हज़रत अली फरमाते हैं उसको डबल सवाब मिलता है, उसको डबल सवाब मिलता है। और सर्दी में वज़ू करके नमाज पढ़ने का और इबादत करने का जो सवाब है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। 70 गुना बढ़ जाता है, ये सर्दियों का सवाब है। तो आज के वक्त में जो सर्दी चल रही है, सुबह को फिर भी सर्दी होती है, फजर के वज़ू के वक्त में फिर भी सर्दी होती है। अगर सुबह को हम वज़ू करेंगे और मस्जिद में जाएंगे, कदमों की कसरत करेंगे, घर से निकलेंगे, वज़ू करके निकलेंगे, कदम बाई कदम निकलते रहेंगे, सवाब मिलता रहेगा। मस्जिद में पहुंचेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इबादतों का सवाब, वज़ू का सवाब, कदम चलने का सवाब, वक्त निकालने का सवाब, हर तरीके से अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता करेगा। मगर हम निकलने वाले तो बने, है कि नहीं? हम निकलने वाले तो बने, तो इंशाअल्लाह ताला हम बावजूद भी रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि बाजमात नमाज पढ़ें। और अगर वक्त नहीं मिल पाया जमात अदा करने का, तो कम से कम जो फर्ज नमाजें हैं उसको हम अकेले ही पढ़ें, घर में पढ़ें, ऑफिस में पढ़ें, कहीं भी रहें, कम से कम उस वक्त हम नमाज तो पढ़ सकते हैं, है ना? तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला अपने हबीब के सदके जुफैल में हम सब